میران شاہ میرے عزیز، ہندوستان کے عظیم مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے بعد اب ہندوستان کی یہ حالت ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے۔ امین خان کی اس گفتگو کا جواب میران شاہ دینا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ساتھ ہی کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ اس صورتحال پر امین خان، فیروز مرزا، علی مردان، ناصر خسرو کے علاوہ ملکھی رام اور میران شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیوان خانے سے باہر نکلے۔ جب وہ حویلی کے صحن میں آئے تو حویلی کے صحن میں ان کے بچے جو تیغزنی کی مشق کر رہے تھے وہ بھی اپنی تربیت چھوڑ کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازہ جب کھولا گیا تو کچھ لوگ ایک چارپائی پر لاش رکھے حویلی سے باہر کھڑے تھے۔ یہ صورتحال محمد امین خان اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی۔ سب پر خاموشی طاری تھی۔ اس دوران علی مردان ہمت کر کے آگے بڑھا۔ لاش کے اوپر جو خون آلود سفید چادر پڑی ہوئی تھی ہٹا کر جب اس نے لاش کا چہرہ دیکھا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور غمزدہ سے انداز میں کہنے لگا، ہائے ہمارا بیٹا مجتبیٰ خان۔ ان الفاظ پر مجتبیٰ خان کا باپ اور علی مردان کا بڑا بھائی فیروز مرزا چونکا۔ آگے بڑھ کر جب اس نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو اس کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ اس موقع پر علی مردان نے اپنے بھائی فیروز مرزا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے سہارا دیا۔ تاہم ان دونوں کا باپ اور مرنے والے مجتبیٰ خان کا دادا محمد امین خان ستون کی طرح کھڑا تھا، چپ، خاموش، کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ اس موقع پر چاروں بچے شہاب الدین، شرف الدین، عباد الدین اور قاورد خان رونے لگے۔ اس موقع پر امین خان کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی تھی، خبردار کسی نے رونے کی کوشش کی۔ پھر اس نے تحکمانہ انداز میں بچوں کو اندر جانے کے لیے کہا تو بچے سہمے سہمے انداز میں بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر چلے گئے تھے۔ محمد امین خان نے اس موقع پر لاش لانے والوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب کے سب اس کے عزیز و اقارب تھے۔ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ تم یہ لاش کہاں سے لائے ہو؟ ان میں سے ایک روتی ہوئی آواز میں محمد امین خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، جب ہمیں مجتبیٰ خان کے مرنے کی اطلاع دی گئی تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ 3 ہندو جن کی مجتبیٰ خان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ان کے نام برادر چندر اور دیوراج ہیں۔ جواب میں محمد امین کچھ دیر خلاؤں میں گھورتا رہا، پھر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر خسرو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ناصر میرے بچے، اپنے دونوں بڑے بھائیوں فیروز مرزا اور علی مردان اور آنے والے ان عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر لاش کو اندر لے چلو۔ لاش کو زنان خانے میں لے جاؤ۔ میں جانتا ہوں بچے اندر چلے گئے ہیں اور وہ مجتبیٰ خان کی موت کی خبر حویلی میں عورتوں کو کر دیں گے اور حویلی کے اندر ایک شور اٹھ کھڑا ہوگا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ لاش کو عورتوں کے کمرے میں پہنچا دو تاکہ وہ مرنے والے کا چہرہ دیکھ سکیں۔ میرے اس بچے کو کس نے قتل کیا ہے میں جان گیا ہوں۔ خداوند کو منظور ہوا تو ایک روز میں یا میری اولاد میرے اس مرنے والے بچے کا انتقام ضرور لیں گے۔ اس موقع پر ناصر خسرو، اس کے دونوں بڑے بھائی فیروز مرزا اور علی مردان حرکت میں آنا چاہتے تھے، لیکن جو ان کے قریبی رشتہ دار لاش کو لائے تھے وہ خود ہی چارپائی اٹھا کر حویلی کے اندر داخل ہوئے اور علی مردان کی رہنمائی میں وہ زنان خانے کی طرف بڑھے۔ اتنی دیر تک زنان خانے سے بین کرنے، نوحہ گری کرنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بہرحال مجتبیٰ خان کی لاش کو زنان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اتنی دیر تک آس پاس رہنے والے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ حویلی کے کھلے صحن میں افسوس کرنے والوں کا جھمگھٹا ہونے لگا تھا۔ ہر کوئی اداس اور افسردہ تھا۔ اس موقع پر ناصر خسرو اور اس کے دونوں بڑے بھائی فیروز مرزا اور علی مردان مجتبیٰ خان کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والے تھے کہ امین خان نے انہیں سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تاہم اسی روز مغرب اور عشاء کے درمیان مجتبیٰ خان کو دفن کر دیا گیا۔ مجتبیٰ خان کی تدفین کے بعد ایک بار پھر محمد امین خان، اس کے تینوں بیٹے فیروز مرزا، علی مردان اور ناصر خسرو کے علاوہ میران شاہ اور ملکھی رام دیوان خانے میں جمع ہوئے۔ محمد امین خان نے اپنے دوسرے عزیز و اقارب اور اپنے قبیلے کے جو لوگ اس وقت وہاں جمع ہو گئے تھے اور انتقام پر تلے ہوئے تھے سمجھا بجھا کر اپنے گھروں کی طرف بھیج دیا۔ علی مردان اور فیروز مرزا کے جتنے بچے تھے، گھر کی جتنی عورتیں تھیں، انہیں بھی دوسرے کمرے کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد امین خان نے باری باری پہلے اپنے تینوں بیٹوں فیروز مرزا، علی مردان اور ناصر خسرو کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں مجتبیٰ خان کے مرنے کے بعد تم تینوں بھائیوں کی کیا حالت ہے، تمہارے جذبات کیا ہیں۔ یہ مت سوچنا میرے جذبات تم سے مختلف ہیں۔ وہ میرا پوتا تھا، میرا شجرہ نسب کی ایک سرسبز اور شاداب ٹہنی تھا جسے کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم ترک جہاں کٹنا جانتے ہیں اور کاٹنا بھی جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ وقت انتقام لینے کا نہیں ہے۔ ہم انتقام پر اترے تو یاد رکھنا
अपने दुश्मनों के हाथों तबाह व बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये पटना शहर है जहाँ के हाकिम हुसैन अली और हसन अली हैं। उनके करीबी अजीजों में से सफदर अली और आलिम अली के अलावा सफदर अली के भाई और आलिम अली के भाई भी हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। जो लोग लाश घर लेकर आए थे उनका कहना था कि उन्हें बताया गया है कि मुजतबा खान को 3 हिंदू बरादू, चंद्र और देवराज ने कत्ल किया है, इसलिए कि एक मौके पर मुजतबा खान से इन 3 हिंदुओं की तल्ख कलामी किसी मामले में हुई थी, लिहाजा उन तीनों के नाम ले दिए गए हैं। और अगर उन तीनों ने मुजतबा खान का खात्मा किया भी है तो ये उन्होंने खुद नहीं किया, किसी के कहने पर किया है, और हालात हकीकत बनकर एक रोज जरूर हमारे सामने आएंगे। मेरे बच्चों, इस मौके पर मेरी एक बात जरूर याद रखना, मुझसे पूछे बगैर कोई कदम ना उठाना, जज्बात से मगलूब होकर कोई फैसला ना करना। मैं जानता हूं मेरे पोते के कत्ल में हसन अली और हुसैन अली दोनों अगर बिला वास्ता नहीं तो बिलवास्ता जरूर मुलव्विस हैं। बराह रास्त इसमें इनके दोनों बड़े अजीज सफदर अली और आलिम अली शामिल हैं। वक्त का इंतजार करो और फिर देखो क़ज़ा व क़दर के अराकीन मगलूबियत का फैसला किसके हक में करते हैं और गालिब रहना किसके मुक़द्दर में लिखते हैं। मेरे अजीज बच्चों, पटना शहर बिहार का मरकजी शहर है और इस पर हसन अली और हुसैन अली हाकिम और वाली हैं, लिहाजा यहाँ रहते हुए हम उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं और ना ही अपना इंतकाम लेने के लिए कामयाबी और फौजमंदी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस मौके पर एक मशवरा देने लगा हूँ, इसे गौर से सुनना और जल्द इस पर अमल करने की कोशिश करना। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन रुका, फिर कहने लगा, फिरोज मिर्जा, सबसे पहले मैं तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाने लगा हूँ। आज ही आधी रात के करीब तुम यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाना। अब हम पटना में नहीं रहेंगे। दिल्ली में तुम मौज़म की बेटी मेहर परवर से मिलना। वो इस वक्त कसर में ही क़याम रखती है, इसलिए कि वो हमारे मौजूदा शहनशाह मौज़म अली की बीवी है और मौज़म अली इन दिनों अपने 4 बेटों के हमरा लाहौर में मुकीम है। हमारे ताल्लुकात सबसे छोटे भाई जहां शाह के साथ सबसे अच्छे और उम्दा हैं। गो रफ़ी शान और अजीमुशान भी हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन शहनशाह मौज़म अली और उसका बड़ा बेटा जहांदार शाह क़राबतदारियों और ताल्लुकात को कोई अहमियत देने वाले नहीं हैं, लिहाजा उनसे हमें किसी मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब जहांदार शाह के तीनों भाई अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहांशाह तो लाहौर जा चुके हैं, लेकिन जहांदार शाह का बेटा रोशन अख्तर, जिसे मोहम्मद शाह कहकर मुखातिब किया जाता है। नाजरीन, यही रोशन अख्तर बाद में मोहम्मद शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बना और तारीख के औराक में मोहम्मद शाह रंगीला कहलाया। मोहम्मद अमीन अपने बेटे फिरोज मिर्जा से कह रहा था कि जहांदार शाह के तीनों भाई अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहां शाह लाहौर जा चुके हैं, लेकिन जहांदार शाह का बेटा रोशन अख्तर, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला कहकर मुखातिब किया जाता है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। फिरोज मिर्जा मेरे अजीज बेटे, पटना से रवाना होने के बाद दिल्ली का रुख करना और कसर में मेहर परवर के अलावा उसके पोते रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह से भी मुलाकात करना, अपने पूरे हालात उन दोनों से बयान करना, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दुश्मनों से हमें महफूज करने के लिए वो हमें दिल्ली में कोई माकूल रिहाइश हासिल करने में मदद देंगे, जिनके लिए हम उन्हें पूरा मुआवजा देंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब मेहर परवर और मोहम्मद शाह का हाथ हम पर होगा तो कोई बिला तवक्कुफ और आंखें बंद करके हम पर हमला आवर होने और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए कि रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह बहरहाल हमारे मौजूदा बादशाह मौज़म अली का पोता है। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान जब खामोश हुआ, तब उसका मंझला बेटा अली मर्दान बोल उठा, अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो इस मौके पर मैं भी कुछ कहूँ। मोहम्मद अमीन खान ने बड़ी संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे बच्चे, अभी तक मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म नहीं की। बहरहाल तुम जो कुछ कहना चाहते हो कह लो। इजाजत मिलने पर अली मर्दान बोल उठा, अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो भाई फिरोज मिर्जा अम्मा को भी अपने साथ ले जाएं, इसलिए कि मेहर परवर के हमारी माँ मेहरुन्निसा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर भाई फिरोज मिर्जा अपने साथ अम्मा को भी लेकर जाते हैं तो मेहर परवर और मोहम्मद शाह पर हमारी इल्तिजा का ज्यादा असर होगा और वो खुलकर हमारी मदद और हिमायत पर आमादा हो जाएंगे। अली मर्दान जब खामोश हुआ तब कुछ देर हल्के हल्के तबस्सुम में मोहम्मद अमीन खान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, अली मर्दान मेरे बच्चे, जो तजवीज़ तुमने पेश की है वो अच्छी है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन लो। फिरोज मिर्जा जाते जाते सिर्फ तुम्हारी माँ मेहरुन्निसा ही नहीं, तुम दोनों की बीवियों कर्रा खातून और तकदीस खानम के अलावा 4 बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगा। पहले वहाँ किसी सराय में क़याम कर लेना, इसके बाद मेहर परवर और मोहम्मद शाह की खिदमत में हाजिर होना, साथ ही मैं तुम्हें माकूल रकम भी मुहैया कर दूंगा। अगर तुम्हारे वहाँ क़याम के दौरान ही रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए तो तुम सबको इस हवेली में मुकीम करके मुझे इत्तला भेज देना। दिल्ली से तुम वापस यहाँ ना आना। मैं हवेली और इसका सारा सामान अपने कबीले के कुछ लोगों के हवाले करके
दिल्ली पहुंच जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन रुका। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, मलखी राम भी आज ही बनारस की तरफ चला जाएगा और मनसराम से जाकर कहेगा कि वो सिमरा से मुतालिक बिल्कुल परेशान और फिक्रमंद ना हो। सिमरा अब उसकी नहीं, हमारी बेटी है और अब हम उसकी हिफाजत का खूब इंतजाम करेंगे। आज रात ही अली मर्दान और नासिर खुसरो के अलावा मीरान शाह तीनों कंधार की तरफ रवाना हो जाएंगे और अगर कर्रा खातून ने अली मर्दान को इजाज़त दे दी कि वो अपने छोटे बेटे शहाबुद्दीन को भी अपने साथ ले जाए तो वो भी इनके साथ कंधार रवाना हो जाएगा। हमारी बदकिस्मती के जो हालात अब तक हमें अपनी औरतों से कहने चाहिए थे, मुज्तबा खान की वजह से नहीं कह सके। अब अली मर्दान और फेरोज मिर्जा दोनों जनान खाने की तरफ जाओ। मीरान शाह और मलखी राम की वजह से जो तफसील है वो सब उनसे कह देना, ताकि उन्हें भी पूरे हालात की खबर हो और जो गुफ्तगू मैंने की है उससे भी उन्हें आगाह करना। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान रुका। तब उसका बड़ा बेटा फेरोज मिर्जा बोल उठा, अब्बा अगर आप बुरा ना माने तो इस मौके पर मैं आपकी इस तजवीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ। अगर मुझे अपने चारों बच्चों और सारी औरतों को लेकर दिल्ली की तरफ जाना है, जबकि भाई अली मर्दान, नासिर खुसरो और छोटा बच्चा शहाबुद्दीन कंधार की तरफ मीरान शाह के साथ जाएंगे, तो अब्बा आप हवेली में अकेले रहकर क्या करेंगे? बुरा ना मानिएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो गौर से सुने, फिर जो फैसला आप देंगे वो हम सब के लिए आखिरी होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आज रात हमने दिल्ली की तरफ रवाना होना है तो फिर अपनी हवेली में अपने कुछ लोगों के हवाले करके आप भी हमारे साथ दिल्ली चलें। यहाँ हवेली में जिस कदर हमारे पास नकदी और सरमाया है वो अपने साथ ले जाएंगे। खुदा के फजल से हमारे पास इस कदर सरमाया है कि हम इससे दिल्ली में एक नहीं कई रिहाइशें खरीद सकते हैं। वहां जाकर सब सराय में क़याम करेंगे। इस सिलसिले में मुझे मेहर परवर और उसके पोते मोहम्मद शाह की खिदमत में हाजिर होने की जरूरत नहीं है। आप खुद जब उनके पास जाएंगे तो वो आपको ऐसी इज्जत, ऐसा एहतराम देंगे कि जो भी आप कहेंगे वो मानेंगे और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जवाब में मोहम्मद अमीन कुछ देर तक हल्के हल्के तबस्सुम में फेरोज मिर्जा की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरे बच्चे अगर तेरी यही सलाह है तो ऐसा ही होगा। आज रात हम सब यहाँ से कूच करेंगे। एक बात याद रखना, मैं अपने बच्चे मुज्तबा खान के इंतकाम को भूलूंगा नहीं। वक्त आने दो, फिर देखना मैं कातिलों के खिलाफ कैसा खूनी इनकलाब बर्पा करता हूँ। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान रुका। तब डरते डरते सहमे सहमे मिल्खी राम बोल उठा और मोहम्मद अमीन खान को मुखातिब करके कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो इस मौके पर मैं भी एक मशवरा आपको देना चाहता हूँ। मोहम्मद अमीन ने मुस्कुराते हुए मिल्खी राम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मिल्खी कहो तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ कहने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जवाब में मिल्खी राम मुस्कुराया, फिर कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का रुख करने की बजाय आप मालवा का रुख क्यों नहीं करते? मालवा का हाकिम और सूबेदार कमरुद्दीन आपका भतीजा है, इसलिए आप उसके दादा के भतीजे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप सब अफराद मालवा कमरुद्दीन के पास चले जाएं तो वो अपने रिश्ते को खूब निभाएगा और आपकी हिफाजत और आपकी देखभाल का खूब एहतमाम करेगा। मिल्खी राम जब खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए मोहम्मद अमीन खान कहने लगा, मिल्खी राम जो मशवरा तुमने दिया है तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक वो भी सही है, लेकिन याद रखना अनकरीब हालात बड़े अबतर हो जाएंगे। शहनशाह लाहौर में बीमार पड़ा है। उसके चारों बेटे जहांदार, अजीमुशान, रफीउशान और जहांशाह में इस वक्त सिर्फ जहांदार शाह की हैसियत मजबूत है। बाकी भाइयों को ठिकाने लगाने के बाद वो बादशाह बनेगा। इस बिना पर इन भाइयों की औलाद, याद रखना, जहांदार शाह की जिंदगी में ही उसके खिलाफ हरकत में आ सकती है या कुछ अरसे बाद तख्त नशीनी के लिए वो झगड़ा उठेगा कि अल अमान अल हफीज, और अगर अपने भाइयों का खात्मा करके या उन पर गलबा हासिल करके जहांदार बादशाह बन गया तो वो अपने बाद कोशिश करेगा कि अपने बेटे इज्जुद्दीन को हिंदुस्तान का बादशाह बनाए। लेकिन दूसरी तरफ तख्त के और भी बहुत से दावेदार हैं। अजीमुशान का बेटा फर्रुख सैर है जो इस वक्त बंगाल में मुकीम है। तीसरे बेटे रफीउशान के 3 बेटे मोहम्मद इब्राहिम, रफीउद्दौला और रफीउद्दरजात हैं। ये भी अपने बाप रफीउशान का इंतकाम लेने के लिए उठ सकते हैं। और चौथे भाई जहांशाह का एक ही बेटा है, रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह। वो भी उम्र के ऐसे हिस्से में है जहां ना किसी के खिलाफ उठ सकता है ना बगावत कर सकता है, और फिर वो ऐसा करने वाला भी नहीं। इसके बावजूद उसकी भी बड़ी अहमियत है, इसलिए कि मौजूदा बादशाह की बीवी मेहर परवर सबसे ज्यादा मोहम्मद शाही को पसंद करती है और उसने दिल्ली के कसर में मोहम्मद शाही के साथ क़याम कर रखा है। मिल्खी राम, अगर मौजूदा बीमार बादशाह मुअज़्ज़म अली के बाद तख्त के दावेदार उठ खड़े होंगे तो याद रखना ऐसा भी मौका आ सकता है कि मालवा में मेरे भतीजे कमरुद्दीन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसा मौका आ गया तो वहां हमसे दुश्मनी रखने वाले खुलकर हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर हम दिल्ली में रिहाइश रखते हैं और तख्त नशीनी की जंग भी शुरू हो जाती है
खाना जंगी भी उठ खड़ी होती है, तब भी मेहर परवर और मोहम्मद शाह की वजह से हम दिल्ली में किसी हद तक महफूज रह सकेंगे। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान रुका, फिर दोबारा मलखी राम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मलखी राम, तुम भी आज रात ही के वक्त हमारे साथ कूच कर जाना। मनसराम को मेरी तरफ से तसल्ली और तशफ़ी देना, उसे कहना बिल्कुल मुतमईन और शांत रहे। अली मर्दान, नासिर खुसरो और मीरान शाह लाहौर पहुंचकर लाहौर के हाकिम अब्दुस समद से मिलेंगे। अब्दुस समद ही की निगरानी में सिमरा और नासिर खुसरो की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। फिर अली मर्दान अब्दुस समद से कहेगा कि अपना कोई हरकारा दिल्ली में मेरी तरफ रवाना करे, जो मुझे सिमरा और नासिर खुसरो की शादी के अलावा बाहिफाजत कंधार की तरफ कूच करने की इत्तला कर दे। ये इत्तला मैं मनसराम को भिजवाकर मुतमईन करवा दूंगा। मेरे ख्याल में अब तुम उठो, न सिर्फ अपनी तैयारी करो बल्कि जनान खाने में जाकर फेरोज मिर्जा और अली मर्दान, तुम जो हालात पेश आ रहे हैं या मैंने तुमसे जो गुफ्तगू की है उसकी इत्तला उन्हें करो। अपने बाप के कहने पर फेरोज मिर्जा और अली मर्दान दोनों उठ खड़े हुए थे, जनान खाने की तरफ गए। वहां एक कमरे में उन दोनों की मां मेहरुन्निसा के अलावा दोनों की बीवियां तकदीस खानम और कर्रा खातून के अलावा छोटी बच्ची माहुल मुल्क, जो फेरोज मिर्जा की बेटी थी, बैठी हुई थी। दोनों भाई आगे बढ़कर अपनी मां के पहलू में खाली नशिस्तों पर बैठ गए। फिर फेरोज मिर्जा ने मीरान शाह और मलखी के आने के पूरे हालात सुनाए, साथ ही जो गुफ्तगू थोड़ी देर पहले दीवान खाने में हुई थी उससे भी सबको आगाह किया। फेरोज मिर्जा जब खामोश हुआ तब अली मर्दान की बीवी कर्रा खातून इंतहाई परेशानी और फिक्रमंदी में अपने शौहर अली मर्दान की तरफ देखते हुए कहने लगी कि तो क्या आप शहाबुद्दीन को कंधार ले जाएंगे? आप जानते हैं मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, और फिर कंधार ले जाकर न जाने आप इसकी तरबियत का सही एहतमाम भी कर सकेंगे या नहीं। अगर इसकी तरबियत अधूरी रह गई तो मैं जिंदगी भर आपको और न अपने आप को माफ कर सकूंगी। कर्रा खातून जब खामोश हुई तब अली मर्दान बड़ी चाहत में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कर्रा खातून, तुम शहाबुद्दीन को किस कदर चाहती हो मैं जानता हूँ, और तुम ये भी जानती हो मुझे अपना बेटा किस कदर अजीज है। मुतमईन रहो, कंधार में इसकी बेहतरीन तरबियत का एहतमाम करूंगा, वहां मेरे साथ महफूज रहेगा, और जब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास लौटूंगा तो तुम फख्र करोगी कि मैंने इस बेटे की कैसी अच्छी और शानदार तरबियत की है। कंधार से मैं इसे कुंदन बनाकर लाऊंगा। कर्रा खातून कुछ सोचती रही, फिर हार मानने के अंदाज में कहने लगी, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मैं इसे तस्लीम करती हूँ, लेकिन शहाबुद्दीन का ख्याल रखिएगा। कर्रा खातून के इस फैसले पर फेरोज मिर्जा और अली मर्दान खुश हो गए थे। फिर वो जनान खाने से निकले, अपने बाप और तीसरे भाई नासिर खुसरो से मिलकर अपनी तैयारियां करने लगे थे। घर में जिस कदर असासा था वो जमा कर लिया गया, जरूरी सामान भी समेट लिया गया। इस तरह आने वाली शब को सब ने वहां से बड़ी राजदारी के साथ कूच किया। हवेली मोहम्मद अमीन खान ने अपने कुछ अजीजों के हवाले कर दी थी। मिल्खी राम बनारस की तरफ चला गया था, बाकी सब दिल्ली तक इकट्ठे गए। वहां सब ने एक सराय में क़याम कर लिया था।